Hi, dear student. First of all, I would like to welcome you in your new class. This is your class 12th. I hope you are all very enthusiastic, energetic, and you have a lot of questions in your mind कि जब 12th में आएंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है. Before start this class, I would like to tell you that your class 12th history gives you a lot of message, information, and this book try to open your mind to think about that what is the meaning of history. You also read in this class the ancient history, medieval history, and modern history. I hope you have purchased book, first book, where you have to read the fourth chapter, brick, beads, and bones, and second kings, farmers, and town. Third chapter is kinship, caste, and class, and chapter 4, thinkers, beliefs, and building. Last year, as you know, that the whole world facing a lot of difficulties. The world faced this pandemic, no doubt to say that this is the very critical era for us, for the human beings. But we are success to solve this problem. And due to that problem, CBSE decided to कि हम कुछ चैप्टर कम करेंगे. लास्ट ईयर के सिलेबस में only 11 chapter they had to suggested for the student, but this year you have to read the whole chapter, complete chapter. In your history there are 15 chapter. The first 4 chapter in class 12th history, first book, and then after the second book through the traveler's eye, Bhakti Sufi tradition, and imperial capital of Vijayanagar, peasants, farmers, and towns, peasants, Jamidar and the state, kings and chronicles. ये चैप्टर 5 चैप्टर जो है वो हम सेकेंड बुक में हम लोग पढ़ेंगे. आई मीन टू से दैट the 5 chapter which we have to read in class 12th history second book, and same the third book, the colonialism and the countrysides, reveals and the Raj, colonial cities, Mahatma Gandhi and national movement, understanding partition and framing the Indian constitution. This chapter we have to read. This is very important chapter. All the chapter gives you a lot of information. In fact, these chapters are related. These chapters you have read in your previous class, 10th, 9th, especially 10th and class 8 book. This is the very important book for you. So I would like to suggest you that you have to also read the class 8 book and class 10th book, 10th SST book, Nationalism in India, and class 8 SST book, the history portion, where the different chapters directly connected with your class 12th history book, like Rebels and Raj.
That chapter, Revolt 1857 and Aftermath. Framing the Indian Constitution, your chapter is 15. In class 8, this chapter is also given there. So you have to read. My dear student, the condition of colonialism in India, the exploitation of Britishers, the foreign companies, these all points given there. And as far as the matter of class 10th history, the chapter Nationalism in India, it is the very important where you have to read the civil disobedience, non-cooperations, Gandhian movement, I mean to say that. In the class 10th history book, they very clearly informed you about the national movement of India. I hope you have studied that. But in the class 11th history, which you have completed, which you have passed, and having passed this, you are sitting class 12th. The class 11th history completely the world history, Mesopotamian history, from beginning of the time, then after Roman Empire, Central Islamic land, Nomadic Empire, and such type of others, three orders, path to modernization. तो क्लास 11th की कंप्लीट हिस्ट्री आपके सिलेबस से इस बार छूटी रहेगी. आपको 10th और क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक को फोकस करना है और उसके बेस पे आपको क्लास 12th की हिस्ट्री को पढ़ना है. आप क्लास 8 की बुक जरूर पढ़ें, फिर आप क्लास 10th की बुक उठाएं, एक चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ें और देन आफ्टर यू हैव क्लियर information regarding your class 12th history. Outline map is in your mind that what you have to read, what you are going to read, and what is important for your syllabus. So my dear, it is very fruitful for you कि आप अपनी पुरानी किताबों को ढूंढें, क्लास में आने के पहले उसे पढ़ें और फिर इन चीज़ों पे चर्चा करें. As I inform you that class 12th history book, the first book that is based on the ancient time period of India, the chapter first is very important in the common language. You can understand that the chapter name is Indus Valley Civilization. We are going to read about this oldest civilization of the world. But the chapter name, bricks, beads and bones. ईंट, मनके, जो वहाँ के मिले चीज़ों के आधार पर हम उस चैप्टर का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है. सेकेंड बुक फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट से शुरू करता है. इबन बतूता, अल-बिरूनीज, फ्रैंकोइस बर्नियर के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो उनके द्वारा छोड़े गए नोट्स हैं, उनके आधार पे हम मध्यकाल के विषयों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं. रिहाला में उसने सल्तनत काल के बारे में क्या लिखा, अल-बिरूनीज ने सल्तनत काल के स्टार्टिंग फेज में क्या लिखा, भारत के बारे में क्या लिखा, तहकीक हिंद में वो किन बातों का उल्लेख करता है, और फिर फ्रैंकोइस बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल कोर्ट के बारे में क्या लिखता है. इन चीज़ों के आधार पे हम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट मध्यकाल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं. और थर्ड बुक, दैट बुक दैट रिलेटेड द मॉडर्न हिस्ट्री. थर्ड बुक से आप एकदम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे. आप लैंड सेटलमेंट्स पढ़ेंगे, रैयतवारी, महालवारी, the problem of the जमींदार्स, auction in
their Jamidar. I mean to say that how the auction their Jamidaris, the story of Vardhaman, fifth report, plug and who, and a lot of things which is very important. अब मॉडर्न हिस्ट्री के उन स्टेप्स को पढ़ेंगे कि जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, जब भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स बट आल्सो द अदर फॉरेनर्स, अदर फॉरेन कंपनीज, they reached India, they tried to capture, they tried to acquire our land, our native land, and how they exploited us, exploited our natural resources. We have to try to understand about that. We will try to understand about that all the things, हम उन चीज़ों को समझेंगे और फिर नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा संविधान किस तरह से फ्रेम हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे. तो ये हमारा एक आउटलाइन मैप हुआ, ये हमारा एक वो चीज़ हुआ जिसके आधार पे हम अपने इतिहास की बुक को पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, हियर आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट कि अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं. अब आप अपने दृष्टिकोण को बदलें. अब आप अपने जो मेथड है, लर्निंग स्किल है, उसको डेवलप करें. पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नए तरीके से इतिहास को पढ़ने का प्रयास करें. आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू. In my last year class, I told you that the history का मतलब क्या है. पहले आप हिस्ट्री की चीज़ों को समझें. इतिहास क्या है, इतिहास को किस तरीके से व्याख्या, इस इतिहास का एक्सप्लेनेशन किस तरह से किया गया है, इतिहास की किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता है, हम जानते हैं. My dear student, in the starting class of class 11th, I was discussing about that the history divided into 3 parts. I am not telling about the middle history, modern history and ancient history. My dear student, first I would like to tell you that we cannot categorize the history in the different part. Ancient, modern, middle one. History is the complete subject where there is no categorization. But कि हम अध्ययन की दृष्टि से फॉर द स्टडी पर्पज इट बिकम्स मोर इजियर फॉर अस इफ वी सेट दैट एरा इज द एंशिएंट एरा, दैट एरा इज द मिडिल एरा एंड दैट एरा इज मॉडर्न एरा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजली से दैट कि हम आज हिस्ट्री के उन टाइम पीरियड को पढ़ेंगे लाइक द प्री हिस्ट्री. I hope you have remembered your first chapter from beginning of the time where you discussed, where you read the human evolution, tool technique, where you have also read about that the development of the human brain, Homo habilis, that was the human species who first time started making tools. उसने हथियार बनाने की कथा को उसने सबसे पहले शुरू किया. तो ये जो चीजें चल रही थी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि हिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में है. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री इतिहास. किस आधार पे हमने इसको बांटा? प्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा काल होता है. प्री हिस्ट्री में हम उन चीजों को रखते हैं जिसमें मानव के पूरे विकास, प्रकृति का विकास, धरती पे जीवों के विकास की कहानी हमें मालूम चलती है. हम मानव को सेंटर में रख के व्यक्ति, इंसान को केंद्र बिंदु में रख के इतिहास का अध्ययन करते हैं.
उसके द्वारा अपनाए गए विविध तकनीकियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से उसने धरती पे सरवाइव किया, किस तरह से वो जंगलों से निकला, किस तरह से उसकी पूरी धरती पे एक्सपेंशन हुए। आई होप रीजनल एंड रिप्लेसमेंट मॉडल के बारे में आपने पढ़ा और फिर मानव ने किस तरीके से पूरी दुनिया में अपना विस्तार किया। टूल टेक्निक के आधार पर किस तरीके के उसने हथियार बनाए, हम उनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इतिहास का सबसे लंबा कालखंड होता है। फिर हम प्रोटो हिस्ट्री पे आते हैं। क्लास 12th में आपका प्रोटो हिस्ट्री से ही शुरू होगा। प्रोटो हिस्ट्री के उस पोर्शन से आपको बात करने हैं। प्रोटो हिस्ट्री की मीनिंग क्या है, पहले आप समझिए। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री इट मीन्स कि प्री हिस्ट्री वेयर देयर इज नो रिटन एविडेंस। प्रोटो हिस्ट्री they had some written evidence, but the present knowledge we are unable to read and explain this. In history, we have the clear information regarding the written script. तो हम उनके राइटिंग स्क्रिप्ट के आधार पे, लेखन पद्धति के आधार पे हम काल का विभाजन किए। लेकिन यदि आप क्लास 8 की बुक पढ़ेंगे, एजुकेटिंग द नेशन, सिविलाइजिंग इंडिया, एजुकेटिंग द नेशन नेटिव्स, इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो जेम्स मिल आपको मिलेंगे। और जेम्स मिल ने किस तरीके से इतिहास की व्याख्या की। जेम्स मिल ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: द एंशिएंट हिस्ट्री, दैट इज द हिंदू हिस्ट्री; द मिडिवल हिस्ट्री, दैट इज द मुस्लिम हिस्ट्री; एंड द मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज द इंग्लिशमैन्स हिस्ट्री। तो उन्होंने रेस के आधार पे इतिहास को बांटा। उन्होंने भारतीय इतिहास को एक उस नजरिए से देखा जो कभी इतिहास के अप्रोच में आता ही नहीं। लेकिन उस समय हम गुलाम थे, तो हमें वही चीजें पढ़नी पड़ी जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने तैयार किया। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने उसी प्रणाली को अपनाने पे बल दिया। आप अगर सिविलाइजिंग द नेटिव्स, एजुकेटिंग द नेशन टॉपिक को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक में, तो वहाँ आपको मिलेगा कि वहाँ पे विल्किंसन्स, विलियम जोन्स जैसे लोग भी थे जो ये मानते थे कि भारत की शिक्षा पद्धति को हम प्राचीन भारतीय पद्धति से आधार पर चलाएं, क्योंकि भारतीय प्राचीन सिस्टम में इतने सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं जो भारतीयों को ट्रेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। माय डियर, इन चीजों पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ये सारी चीजें आपको इतिहास में पढ़नी है। इन सभी चीजों को आपको विस्तार से देखना है। अभी हमने चैप्टर्स के बारे में बात की, आपके चैप्टर्स की। मैं एक बार फिर बताता हूँ, आपको जो क्लास 12th में चैप्टर पढ़ने हैं, कंप्लीट चैप्टर पढ़ने हैं। पिछले साल कोविड के चलते आपके चैप्टर्स को रिड्यूस किया था सीबीएसई ने, लेकिन इस साल क्लियर इंस्ट्रक्शंस, अभी क्या गाइडलाइन सीबीएसई की आई, अभी इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया। इसलिए इस साल हम कोविड से उबर चुके हैं, तो हमें कंप्लीट चैप्टर को पढ़ना है। कंप्लीट चैप्टर में चैप्टर 1 ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताएगा। चैप्टर 2 है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें आप अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CE, 1000 सालों का इतिहास सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है। देन आफ्टर 3rd चैप्टर आपका किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर में अर्ली सोसाइटी के बारे में आपको अध्ययन करना है। यू हैव टू रीड अबाउट द अर्ली सोसाइटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CE, 1000 ईयर हिस्ट्री। सेम आप जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स,
अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी, किस तरीके से राज्य बने, किस तरह अर्थव्यवस्था डेवलप हुई, 1000 सालों के इतिहास में जनपद, महाजनपद और किस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ा। ठीक उसी तरीके से आप चैप्टर 3 में किनशिप कास्ट एंड क्लास में 6 सेंचुरी BC टू 6 सेंचुरी AD के बीच के काल को पढ़ेंगे, सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मैरिज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, विमेंस प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, किनशिप के बारे में पढ़ेंगे। और फिर 4th चैप्टर आपका आता है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पे धार्मिक जो आंदोलन हुए भारत में उनके बारे में आपको पढ़ना है। धार्मिक आंदोलन, नास्तिक संप्रदायों का उदय 6 सेंचुरी BC में, किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ साथ 64 अदर सेक्ट्स इमर्ज इन इंडिया। दे हाईली अपोज दैट द ब्राह्मणिकल practices, the superstitions. Among the 64 sects, someone who believed that there is no existence of God. The Buddhism and Jainism, they were prominent in them. उनमें से महत्वपूर्ण थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। यहाँ पे आपको उनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको बिल्डिंग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सांची कैसे बनी, अमरावती का क्या महत्व है, फिर मंदिरों का विकास कैसे हुआ, मंदिर कैसे कैसे डेवलप हुए, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। थीम 5 सेकेंड बुक आपका यहाँ शुरू हुआ, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे 10th to 17th सेंचुरी के बीच के काल को पढ़ेंगे, 10th to 17th सेंचुरी AD के काल को पढ़ेंगे आप। सल्तनत काल से लेके मुगल काल के बीच का काल आपको इसमें पढ़ना है। इसमें एक लंबा कालखंड है, भारत में आए हुए विदेशी यात्रियों के द्वारा बताए गए वृत्तांत, बताए गए विवरण, और फिर मुगल काल में लिखवाए गए जो वृत्तांत थे, क्रॉनिकल्स थे, उनके आधार पर हम इतिहास को समझने का प्रयास यहाँ करते हैं। रिहाला, ताकीक हिंद, ट्रेवल्स इन द मुगल कोर्ट, अकबरनामा, बाबरनामा, बादशाहनामा, हुमायूंनामा, आईने अकबरी। और फिर इसमें राजाओं के बारे में कैसे सूचना मिलती है, इसमें उन चीज़ों के बारे में हम किस तरीके से बातों को समझ पाते हैं, इन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। माय डियर, आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। एक लंबा कालखंड 10th सेंचुरी C to 17th सेंचुरी C के बीच भारत में जिन जिन शासकों ने शासन किया उनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बेसिकली हम फोकस करेंगे यहाँ पे मुगल, और इसके बाद चैप्टर 6 आपका आता है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में आपको भक्ति का विकास भारत में और साथ साथ भक्ति के विकास के साथ साथ साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 7 NR और वैष्णव अलवार्स के बारे में पढ़ना है। सूफी ट्रेडिशंस में मीनिंग ऑफ सूफीज़म के बारे में पढ़ना है। फिर सूफीज़म के साथ साथ सूफीज़म की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में पढ़ना है, और फिर किस तरीके से सूफीज़म इस्लाम के एक्सट्रीमिस्ट प्रैक्टिसेस का विरोध करती है, किस तरह ह्यूमैनिटी पे बल देती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बल देती है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। टीचर्स के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में। और फिर 7th चैप्टर आपका इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। इंपीरियल कैपिटल विजयनगर 14th to 16th सेंचुरी, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द, आई मीन टू से दैट की the Vijayanagar, Imperial Vijayanagar in the southern part of India, that was the very prominent empire which was discussed by Babur in their autobiography, Baburnama.
बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बार का उल्लेख करता है कि जब मैंने भारत पे आक्रमण किया, जब मैंने भारत को जीता, तो उसमें हिंदुस्तान में 5 बड़े शक्तिशाली शासक थे, उनमें विजयनगर भी एक था, और विजयनगर में कृष्णदेवराय का शासन था। थीम 8, चैप्टर 8, पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। यहाँ पे अग्रगेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में मुगल काल में जो रिफॉर्म हुए थे, लैंड रिफॉर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। आईन अकबरी में जो डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं भारतीय समाज के बारे में, नगरों के बारे में, इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम इसमें करेंगे। और फिर चैप्टर 9, थीम 9, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोड्स। इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरह से 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के बीच मुगल कोर्ट में जो चीज़ें प्रैक्टिस में थी उनके बारे में। थर्ड बुक, जिसको मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड बुक, द कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड्स, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। भारत में उपनिवेशवाद और गांव की दशा कैसी थी, किस तरीके से, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ब्रिटिश ऑफिशियल आर्काइव से मिलते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर थीम्स 11, रिबिल्स एंड द राज, इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। यहाँ पे आप रिवोल्ट 1857 के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। लोकल रूलर्स की अपनी डिमांड्स क्या थी, उनके आधार पर रिवोल्ट कैसे हो गई, क्या ये रिवोल्ट नेशनल रिवोल्ट था, क्या ये रिवोल्ट कुछ राजाओं के द्वारा ही चलाया गया, क्या इस रिवोल्ट में सैनिकों ने भागीदारी की तो क्यों की, और किस तरीके से रिवोल्ट सैनिकों से होते हुए किसानों और राजाओं तक फैल गया, जमींदार भी इसमें पार्टिसिपेट किए। इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा हम करेंगे। और फिर चैप्टर 12 आपका है कॉलोनियल सिटी, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इसमें 3 बड़े प्रेसिडेंसी सिटी के बारे में बात करेंगे, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। कैसे इन शहरों का विकास हुआ, कैसे शहर बसे, ग्रेट ब्लैक टाउन क्या है, वाइट टाउन्स क्या है, कैंटोनमेंट एरिया क्या है, लॉटरी कमेटी क्या थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे चलते थे, इन चीज़ों पे हम देखेंगे, इन पे बातें करेंगे। मैप का क्या योगदान था, मैप क्यों बनाए जाते थे। थीम 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। ये टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें आपको गांधी मूवमेंट पढ़ना है, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, जलियांवाला बाग मस्कियर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस, गांधी का भारत आगमन, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, और फिर धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन, फिर गांधी की किस तरह से हत्या होती है वहाँ तक, गांधी के लिखे गए पत्र जो उन्होंने हिटलर को लिखे वहाँ तक, फिर अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। पार्टीशन में हम भारत के पार्टीशन के बाद की स्थितियों पे चर्चा करेंगे। इवन दिस चैप्टर इज आल्सो यू हैव टू रीड इन क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। आई थिंक दिस चैप्टर इज फर्स्ट चैप्टर। और फिर हम उसके बाद भारत में संविधान कैसे बना, framing the constitutions, the beginning of the new era. That is the very important things in this chapter. We will discuss about that, the process. In the process, which type of the difficulties was faced by the nationalist leader, which type of questions arose by the Constituent Assembly members, what was the problem of the language dispute, what was the problem of the unity, separate electorate, and what was the question on the Constituent Assembly of the socialist leader. इन चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये रहा हमारा एक पूरा आउटलाइन
जो हम आपको इस साल पढ़ाएंगे, इस पे हम लोगों को इस बार बातें करनी है। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके बारे में। और जब आप इस कंप्लीट चीज़ों को पढ़ लेंगे तब हम हिस्ट्री के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, किन किन सोर्स के द्वारा हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री इज नॉट ओनली गॉसिप, हिस्ट्री बेस्ड ऑन एविडेंस। विदाउट एविडेंस वी कैन नॉट से दैट दिस हैपेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? वी विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।